Friends, people who have been in government for past 10 years have failed to deliver on the promise of development and progress, and thus, as a strategy, they have chosen to divert the agenda of development and progress into sometimes communal, sometimes writing, and various other projects which are ongoing. And the topmost leadership of the BJP has clarified repeatedly, and we are making a further clarification, that BJP will focus on the agenda of good governance and development, as people of this country have already decided what this election is all about, and we will not allow anybody to divert that agenda, especially the Congress party, which has failed on the promises made and today is seeking to divert the agenda for its own benefit. The assessment of 2014 election goes, Congress is going to be reduced as per state tallies into single digit and national tally not exceeding 2 digits. And because they already know that writing is on the wall, they are seeking and diverting the agenda and scurrying for cover. The policy paralysis, the economic conditions, as if under a strategy that the incumbent government is following, that the forthcoming government should be faced with more and more difficulties in running the government, because when NDA left, we had left a GDP rate of 8.5% and $400 billion worth of foreign exchange in the coffers of Indian government. Whereas there has been a failure in all those aspects repeatedly by this government. The cost of land keeps going up. The farmers are not compensated adequately and in time, and repeatedly this government has indulged in all kind of wrongs and given an atmosphere of uncertainty and inappropriate policy for the foreign investors and even Indian investors. So investors' interests will be taken care of when we come to power, so that the country can progress at a greater speed and rule of law prevails in this country. At the same time, people who have failed keep going back to some inane issues. मित्रों, आज देश ने तय कर लिया है कि देश के जो 2014 के चुनाव है उसकी क्या व्यवस्था होगी, क्या मुद्दे होंगे, और उन मुद्दों को भ्रमित करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम उनके सहयोगी दल लगे हुए हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि विकास और सुशासन के मुद्दे पर पिछले 10 सालों में खास तौर पर और पूरी तरीके से देखा जाए तो 67 में से 60 सालों का कुशासन हम सबके सामने है। देश में तरक्की के नाम पर लगातार दोनों हाथ लूट और हर जबान पर झूठ का नारा ही चला है, और उससे जिस तरीके की व्यवस्था पैदा हुई है, आज वही देश की सबसे बड़ी समस्या है। और उन्हीं मुद्दों पर जब ये सरकार विफल रही है, तो लगातार चुनाव को, चुनावी माहौल को खराब करने के लिए, भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ फिजूल की बातों को उठाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उसने ये बात पहले ही प्रमुखता से बोली है कि हमारे आगे सिर्फ और सिर्फ विकास और सुशासन का मुद्दा है, और उस मुद्दे से हम ना भटकना चाहते हैं, ना देश के आवाम को भटकाना चाहते हैं। ये उनकी सुविधा है भटकाने में और भटकने में, जो इन मुद्दों पर विफल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए
की ये इच्छा नहीं हो सकती और ना ही है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर हम लगातार जनता के बीच जाना चाहते हैं और जनता से इन्हीं चुनावी मसलों पर बात करना चाहते हैं। फिर दोबारा से कुछ अजीब अजीब किस्म की सीडीज और तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखा जा रहा है, जो आजकल नहीं बल्कि कोई 2007 की, कोई 2012 की, जहां व्यक्ति ने खुद अपने आप को उससे इनकार कर दिया हो तो वो जनता के बीच का मुद्दा नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के माहौल बिगाड़ने की कोशिश है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब चीज़ों में अपनी मारियत रखती है, ना कि देश के प्रति सुशासन में या देश की तरक्की के प्रति उनका कोई भी वर्चस्व दिखाई देता है। इस बार देश की जनता ने पहले ही पूर्व में तय कर लिया है कि क्या मुद्दे देश के होंगे और किन मुद्दों पर चुनाव होगा, और जिस तरीके का माहौल है उससे स्पष्ट है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जो टैली है वो सबसे अधिक होने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में 2 डिजिट का आकलन प्राप्त करेगी और हर राज्य में 1 डिजिट से ऊपर नहीं जाएगी, और वहीं पर एनडीए सबसे अधिक सीटें लेकर अगली सरकार बनाएगी। ऐसे में माहौल को बिगाड़ना कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिसके लिए कोई और नहीं वही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने भारत को सिर्फ कुशासन के कुछ और नहीं दिया है और लगातार विकास के मुद्दों से भ्रमित राजनीति करते आए हैं।